This is a building footprint layer, and for each building, the solar photovoltaic potential values are calculated using the Esri tool. So there are around 1.5 million buildings in this layer, and for each building, the radiation values are calculated for months and years. So in an attribute table of this layer, there are there are multiple fields on which the radiation value, the solar potential value for each month are there, and for yearly values are there. And on the basis of these potential values, the units, the electricity units that can be produced if the solar panels are installed on the roof can also be estimated. So there are around 1.5 million buildings, so more than 1.5 million records are there in this layer. So for analysis purposes, just for identifying which areas are better for solar panel installation, for which districts, which councils, which tehsils are better, which can be motivated for installation of solar panels. So for that analysis, we have to create a pivot table. We have to create charts. We have to create graphs. For that purpose, we have to take this data. We have to export this data into the Excel. But the data limit size exceeds the data that can be handled in Excel. For that purpose, we have to export this data into a personal database, into a personal geodatabase. So for first, we have to create a personal geodatabase in our desired location. For example, if I have to go here and if I have to create a personal database in this folder, I have to go here, new and personal database. I have created it by my own self, so I'm not creating it now. So mdb file will gonna be created, and we have to export this table into this geodatabase that we just have created. So we have to go here and we have to export this into our location where we have created our new personal database. So I just have created it. We just have to give it a name here. So I have given this name here of this file, of this table, and it's been stored on the on our personal geodatabase that we have created. This is generally a mdb file where tables are stored in it. So we have to save it. So we have to save here. Now that the data is being exported and it's been created on our database, where we can take the data and we can generate tables for analysis purpose. So for that, we have to insert a pivot tables from an external data source, because the data isn't located in this Excel file. So we have to go in from external data source, and we have to give the location for where we have saved our personal geodatabase. So I'm going here. It's been stored in my this folder. Yes, here it is stored. So I would just gonna select this location, and it will just gonna process for few seconds, and then I just have to press OK just to load the data. So it's been asking for me which table I do want to load in it. So the table that I have stored there was solar PV table. So I just have to select it and just have to press it OK. So it will just take a few minutes just to load all the fields, because there's 1.5 million fields, so it will just gonna take some time. So the data has been loaded, and now we can create our pivot tables for anything that we want to make for analysis purpose. For example, if I have to add the field which shows the size of the building in Malla, so that I have to go here and we have to put this in rows, and we can create groups of it. We can create for our analysis purpose. There are so many things that we can now do this data, because now this data is in our control, and we can create multiple charts, multiple tables from it, and for our analysis purposes. तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि हमने क्रॉस टैब बनाना है टेबल्स रिजल्ट्स के लिए, ठीक है ना? जी तो अब तुम्हारा जो कॉलम है इसके अंदर आपका है एरिया या पोटेंशियल है ये पोटेंशियल है सारा ये पर पर आवर। मरला पोटेंशियल है।
ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम ज़ीरो से लेके 1999 किलोवाट आवर पर मरला जो है वो वैल्यूज ये अवेलेबल। ये जस्ट एक क्लास है 1999 को। मैक्सिमम इसका वैल्यूज न्यू है 1800, न्यू यानी कि 1800 है मैक्सिमम। ठीक हो गया। और इसके साथ इसको थोड़ा सा जूम करो ना इस टेबल को ज़रा, और करो ज़रा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स का। ठीक है, जो जी जी लास्ट टाइम काउंट। हमने डिस्कस किया था कि जो रेंज है अराउंड 750 और ऑनवर्ड पर जी। मरला जो प्रोडक्शन होगी वो एक किस्म की रिकमेंडेड है। हम्म। ठीक है, यस। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ऑनवर्ड जो बिल्डिंग्स होंगी वो आउट ऑफ 1.5 मिलियन जो है, ये वाली जो है बिल्डिंग्स जो तकरीबन 30 या 40% बनती हैं। जी ठीक है, यही ऐसे ही था। जी। जी बिल्कुल ऐसे। तो पहले तो इन बिल्डिंग के काउंट को ना ठीक हो गया। तो अब ये एक टेबल तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हम दिखा सकते हैं। ऊपर वाला जो कॉलम है बिल्डिंग जी साइज है, ठीक है। जी जी और कॉलम ए में जो है वो है हमारे पास पर जो मरला जो है उसकी हमने वैल्यूज दी हुई है। जी। ठीक हो गया, सही। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये टेबल हम जो है ना आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो तो इसमें इस लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एक चैलेंजिंग है कि हम डिस्ट्रिक्ट कैसे दिखाएंगे, डिस्ट्रिक्ट। हाँ वो अभी कर लेते हैं। तो ये इसको इसकी शीट का नेम जो है ना ओवरऑल कर दो इसको, और फिर बाद में इसकी कॉपी बनाओ शीट की, फिर हम आगे चलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी कॉपी करो इसी शीट की, और इसको करो डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक हो गया। अब आपने इसी के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का जो टेबल है वो ड्रैग करके लाना है आपने, और वो आप डालोगे इसको। एक काम करोगे कि नहीं, मरलेस को निकाल दो। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, हाँ ऑफ कर दो इसको, ठीक है। और अब जो है जो पर मरला है इसको कॉलम में मूव कर दो, जो रो है उसको कॉलम में ले जाओ, और अब डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रोज में ले जाओ। ठीक है, और एक स्टेप जो है वो जूम आउट कर दो इसको। ठीक हो गया, अब ये है कि टेबल। अब यहाँ से अब हमें रेंज मिलना शुरू होगी यूनिट्स की। ठीक है, बाय डिस्ट्रिक्ट। जी जी ठीक हो गया। अब ये जो टेबल है इसको आप यूज़ कर सकते हो जो है वो सेकंड के लिए बाय डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमें हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, और जी इसमें जो है वो डिफरेंट जो यूनिट्स के अंदर जो पर मरला जो उसकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, ये जी ओवरऑल एनुअल पोटेंशियल है ना ये वाला। जी जी। तो एनुअल पोटेंशियल हमारे पास आ गया। तो ये वाला टेबल जो यस। है वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड हो जाएगा। तो इसमें जी आप यूँ कर सकते हो कि जो लास्ट कैटेगरी है आप देख रहे हो, तो इसको आप 1500 तक रोक दो। ठीक है, अभी रिक्लासिफिकेशन में जाओ कॉलम की। ठीक है, इसकी नहीं, इस तरह नहीं होगा। हेडर को सिर्फ उस वाले को, इसका ग्रुप नहीं बनेगा, पूरा सिलेक्ट हो रहा है, कॉलम नहीं होगा, सिर्फ वो सेल होगा पूरा। या नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर एक के अंदर आप एंटर करोगे सी के। हाँ, अब इसको ग्रुप करो उसको। तो जो एंड है उसको आप कर दो 1499 कर दो। ठीक है, तो अब आपकी दो क्लासेस जो है ना, मेरे ख्याल एक क्लास या दो क्लासेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी ये जो है ना 15 वाला जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इट्स ओके। लेकिन अगर आप अप टू 1500 रह जाओ तो ज़्यादा है, तो फाइनल कर दो 1250 को। इसको 12 दोबारा करो। ठीक है, और स्टार्ट करो 500 से।
ठीक है, अब सही है। तो अब आपके पास क्लासेस 2 कम हो जाएंगे, आई थिंक 2 या 3 कम हो जाएंगे। और इनको अब एक्सप्लेन करना, आपका 750 वाला कट ऑफ आ रहा है इसके अंदर, इसमें 2 क्लासेस मिल गई, 750 और 99 999 जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये आपके लिए होगी जो एवरेज रेंज में आएगी। इसको आइदर आप एक्सक्लूड कर सकते हो फाइनल डिसीजन में, या इसको इंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है। और जो आखिरी 2 कैटेगरीज हैं वो बेसिकली आपकी जो अबव एवरेज है जो कैटेगरीज हैं, तो ये आपकी 5 क्लासेस जो है वो रीजनेबल हो जाएंगी। बी क्लासेस में ओवरऑल में भी बना लूँ। तो उसमें भी आप कर सकते हो बिल्कुल, अगर आप उसको समझते हो कि उस तरीके से आपको थोड़ा सा जी आसानी हो जाएगी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, तो वी कैन डू द सेम थिंग। ठीक यस हो सर। गया। तो अब आपके ये 2 टेबल जो है ना, आपके एक ओवरऑल डिस्कशन आ गई, अब आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, जी उसने ऑटोमेटिकली कर दिया कि नहीं? हाँ कर दिया उसने। ओवरऑल में किया जी कि नहीं किया? ओवरऑल में भी कर दिया, दोनों को लिंक कर दिया उसने। ठीक हम्म, है, दोनों ऑटोमेटिकली हो गए हैं। ठीक हो गया। जी सर। तो अब ये जो है ना, ये 2 टेबल जो है ना आपके आ जाएंगे। अब इसमें हम ले रहे हैं नंबर ऑफ बिल्डिंग्स का। जी काउंट लेना। ठीक है, काउंट ले रहे हैं। जी तो इसमें हम परसेंटेज भी ले सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसको हम ठीक अगर आप इसी टेबल को कॉपी कर लो, इस वाले पूरे चार्ट को, नहीं इस वाले जो अंदर चार्ट बना हुआ इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कर लो और इसको कॉपी करो, और नीचे 3-4 रो छोड़ के यानी कि A16 पे क्लिक करो, या अब इसके ऊपर जो है इसको पेस्ट कर दो। अब ये 2 पिवट टेबल जो है ना वो एक शीट के ऊपर आ गए। अब जो सेकंड शीट है इसको आप करोगे, इसमें आप इसका जो टेबल है इसको आप कर दो परसेंटेज ऑफ, किसका करोगे आप? परसेंटेज ऑफ रो करना है या परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करना है? राइट क्लिक करो इसके ऊपर, वैल्यूज के अंदर, हाँ इसको समराइज कर दो। वैल्यूज शो वैल्यूज एज, नो एज वैल्यूज एज, या इसके अंदर जो है वो आप 2-3 ऑप्शंस हैं कि आप ग्रैंड टोटल का भी परसेंटेज लेना चाहते हो टोटल बिल्डिंग का, और आप चाहते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, तो परसेंटेज ऑफ कॉलम का रो कर दो। पहले परसेंटेज ऑफ कॉलम का रो कर दो। ठीक है, तो आपकी जो टोटल है वो 100 में से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है कि एक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में लेट सपोज जो है वो 18 और 18.6 और 6.2 परसेंटेज जो है, ये जो है वो ज़्यादा एलिजिबल है। ठीक जी है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये आखिर में नीचे जाके देखोगे 13 और 3.6 है। तो हम्म, अगर इसके साथ आप 12 को भी शामिल कर लोगे तो 12, 13, 25 और 3, 28, 29 और 30% बिल्डिंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है जिनका पोटेंशियल जो है पर मरला जो है वो 750 एंड अबव है। जी ठीक है, जी जी तो ये आपका नंबर जो है वो आप इसको कोट कर सकते हो। तो जो पहला वैल्यूज है 46.7% बिल्डिंग जो है, जी वो आपकी नॉर्मली नॉट सजेस्टेड। जी 500 टू 749 जो रेंज है ये वाली क्रिटिकल है, इट डिपेंडिंग ऑन द टोटल साइज ऑफ द बिल्डिंग। तो यस उसमें आप डिसाइड कर सकते हो, और आखिरी जो 3 कैटेगरीज हैं वो नॉर्मली जो है वो काइंड ऑफ रिकमेंडेड है। ठीक होगा। ठीक हो गया। तो अब आपने जी करना यह है कि ये जो परसेंटेज है जो कॉलम बनाओगे फाइनल, तो ऊपर वाले टेबल के साथ मर्ज करना है आपने मैनुअली। ठीक तो है, इसको डिस्कशन में वैसे नहीं लिखा जाएगा लाइक, बट हाँ ठीक है। आपने कॉलम इसको। इन बिल्डिंग के बराबर हर के ब्रैकेट में इसका परसेंटेज लिख देना है। जी ठीक ठीक है, होगा। लेकिन लिखना जी फिर यह है कि उसके नोट में साथ में लिखना है कि ये परसेंटेज ऑफ रो है। ठीक है, क्योंकि एक ठीक डिस्ट्रिक्ट की होगा। होगा, ये नहीं है कि 500 के अंदर हम नहीं देख रहे। ठीक है, जी क्योंकि दोनों ठीक है। एंगल हैं इसके दिखाने के, तो अब आपको क्या दिखाना है परसेंटेज वो आपको डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है, तो अभी हम जी देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टोटल बिल्डिंग्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। यस। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्कशन करनी है तो हमें एलिजिबिलिटी उसको देखें बजाय हम कैटेगरीज के करने के। कैटेगरी हमारे पिछले टेबल में चली गई है जी ओवरऑल में।
ठीक है, इसमें हम फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्कशन करेंगे और मैप्स के ऊपर जो है हम यूनियन काउंसिल लेवल पे डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को लेके। ठीक है। ठीक है, जी जी। तो ये अब आपका जो है ना वो बनेगा। तो अब आपने इसमें से जो क्रिटिकल डिस्टेंस है वो 750 एंड ऑनवर्ड लेना है। हम्म। अगर तो फिर वो यूनियन काउंसिल के लिए हम लेंगे आगे। ठीक है। ठीक है, यूनियन काउंसिल में हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए कि वो जो एक यूनियन काउंसिल में 750 एंड अबव पोटेंशियल की कितनी बिल्डिंग्स हैं और वो टोटल बिल्डिंग का कितना परसेंटेज है। हम्म। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब अगर इसमें जी। तुमने फिल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो। पहले आप जाओ ऊपर वाले में फिल्टर लगाओ, शुरू वाले में, ओवरऑल में भी हम्म। करोगे यही काम। आपने जो बिल्डिंग का साइज बहुत ही छोटा है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना, जो आप समझते हो कि दे आर नॉट कैन बी कंसिडर एज ए बिल्डिंग्स। ठीक है, तो वो जो साइज है वो आप फिल्टर में ऐड करोगे और यहाँ से फिल्टर में जाके आपने इसको उस रेंज को जाओ ऊपर, या इसमें जो है वो लेस देन ज़ीरो वाले जो है वो आउट कर दो इसमें से, या ज़ीरो। ठीक है। और इसमें से क्योंकि अब कैटेगरीज बन गई हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है उसको ज़ीरो वाले को यहाँ से निकालना, अनटिल अनलेस हमारे पास बगैर कैटेगरीज के। आपके पास एरिया नहीं है किसी का, वो लो ना, एरिया वाला लो, इसको निकाल दो कॉलम को, इसको ऑन ऑन रहने दो ज़ीरो को, फिल्टर को हटाओ। लेकिन यह है कि इसको पहले आप जाओ वापस फिल्टर पे, उस ज़ीरो को इनेबल करो, लेस देन ज़ीरो को, या ओके करो। अब ये फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर दो, इसकी जगह पर सिंपल जो एरिया है बिल्डिंग का वो लेके आओ, इसको निकालो पहले। हाँ ठीक है, जी। अब एरिया लेके आओ, या और यहाँ से जो एरिया है आप समझते हो कि ऐसी बिल्डिंग जिसका एरिया इससे कम होगा वो आपने इसमें शामिल नहीं करनी। ठीक है, हम्म। ठीक है, ओके करो इसको। हम्म, इसको आपने फिल्टर में ऐड किया था, जी। दोबारा ट्राई करो। सही। फिल्टर में क्यों नहीं ऐड हो रहा है? ये तो फिल्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो फिर इसकी रेंज इंडिविजुअल है ना, तो ये उसकी रेंज से बाहर जा रही है 1.5 से, 1.5 मिलियन है ना, तो इसमें वो ऐड नहीं हो सकता पूरा। हम्म। तो आई थिंक ये वाला इसमें इशू है। तो अब क्या किया जा सकता है? कोई ऐसा और कॉलम तो नहीं है जिसमें से हमें पता चले कि स्मॉल एरिया हम निकाल सकें इसमें से? ये वाला भी है जिसमें एरिया है उसमें। इसमें है, ट्राई करो इसको ज़रा देखो। ये भी वही, क्योंकि वो इंडिविजुअल वैल्यूज ज़्यादा है ना, क्योंकि वो डेसिमल में है तो ऑलमोस्ट हर वैल्यूज एक यूनिक बन जाती है। जी। तो वो इसमें फिर हमें चले, इसको फिर हम कंसिडर करते हैं कि बाद में इसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं इसको। तो मकसद ये है कि कुछ नंबर ऐसे जो वन बिल्कुल बिल्डिंगें जो है वो नहीं हम कह सकते कि ये है किसी शक्ल में भी, उसको फिर हम मेरा ख्याल है कि इसमें से आउट करना पड़ेगा हमें। वो मैं आज यही सीक्यू लगा के एक्सपोर्ट कर लूँगा दोबारा से। नहीं नहीं, उस एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इस तरह, इस तरह वो ठीक नहीं है उसको उसको शामिल करना। तो यहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई हल निकाल लेंगे हम, कोई नहीं। ठीक है, तो ठीक यह प्लान समझ आ गया आपको यहाँ तक? है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो ये जो 35 जो परसेंटेज है, तो ये आप एक इसको पहले दोनों को डेट टेबल बनाओगे। ठीक है। ठीक है, और ये जो दूसरा टेबल आएगा, बल चाहे इसको कॉपी कर लो ना दोनों को एक दफ़ा, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट ऑल कर लो और कॉपी करो इसको, और नई शीट बनाओ, नई शीट बनाओ और उसमें जाके इसको पेस्ट एज वैल्यूज करो। ठीक हो गया? अब हम्म। इसमें जो नीचे वाला है ये आपका डेसिमल ख़त्म हो गया, तो अब आपने क्या करना है, 100 कहीं लिखो साइड पे और उसको कॉपी करो। पहले बाहर इसको हाँ कॉपी करो अब इसको, और ये जो जितने भी परसेंटेज वाली जो नंबर्स हैं सारों को सिलेक्ट करो एक दफ़ा।
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो, इसको राइट क्लिक करो, इसी के अंदर राइट क्लिक का ऑप्शन है स्पेशल पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई है, इसको कर दो तो ये आपको अब दे देगा। अब इसको सिलेक्शन को रहने दो, ऊपर से डेसिमल प्लेसेस को कंट्रोल कर लो, जो कॉमा दिया हुआ है, कॉमे को पहले क्लिक करो, राइट साइड पे सेंट्रल के अंदर कॉमा है, इसको क्लिक करो, फिर बाद में जो राइट और इसके साथ जो जीरो वाले जो हैं वो डेसिमल प्लेसेस को कम एक्सटेंड करते हैं, वो वाले करने हैं आपने, ये जो साइड वाले हैं, ठीक है, ये कम या ज़्यादा के लिए इसको एक डेसिमल पे ले जाओ बस, ठीक है। अब ये जो नंबर होगा, ये नंबर उधर ब्रैकेट में जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको तुमने डेसिमल में, उसको भी तुमने कॉमे में 1000 कॉमा जो है वो जो अप्लाई करना होता है, वो आप अप्लाई करोगे और उसको डेसिमल 0 कर दोगे, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो पहला सेल है आपका, उसको आपने उसके करना है फार्मूले को। अब आप यूं करो कि इस टेबल को, इसके स्ट्रक्चर को कॉपी करो सिर्फ, यानी कि पहले रोज को एक दफा पूरा कॉलम कॉपी कर लो, पूरे टेबल को, पहले वाले को, या इसको साइड में इसके इक्वलेंट जो है ना बिल्कुल बराबर में इसी तरह ये 2 कॉलम छोड़ के ऐड कर दो इसको यहाँ पे, ठीक हो गया। अब जो K5 है उसमें कर्सर को लेके जाओ, ठीक है, K5 में यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करोगे, इक्वल टू का साइन डालो, ठीक है, और इसके बाद कॉनकैटिनेट्स CON, ये जो आपके पास आ गया छठे 7वें नंबर पर जो है वो कन्वर्ट के बाद कॉनकैटिनेट, ओके, इसके बाद डबल क्लिक करो, इसके बाद जो है वो अब तुमने लिखना है, जो पहला वाला है B5 के ऊपर क्लिक करना है अब, या B5 लिख दो, हाँ, कॉमा, अब जो कोटेशन मार्क्स है वो लिखो, लेकिन उसके दरमियान में एक स्मॉल ब्रैकेट डालो, पहले कोटेशन मार्क स्टार्ट होगी, स्पेस नहीं, स्पेस, या कोटेशन मार्क स्टार्ट ब्रैकेट और कोटेशन मार्क क्लोज, क्लोज करो, यहाँ पे कोटेशन मार्क को क्लोज करना है, और फिर कॉमा डालो, फिर लिखो B18 या, फिर इसी तरह रिपीट करो, कॉमा, और फिर जो है वो कोटेशन मार्क स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, क्लोज क्लोज क्लोज, just one side, closing sign, not the starting bracket, closing bracket only, not the starting one, yeah, that's a good question mark, and bracket close and enter, okay, and now the increase the size of the column, और मज़ीद करो। अब इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि अब आपको 2 हिस्से इसमें करने हैं, इसी के अंदर जो फार्मूले के अंदर आपको डेसिमल करना है, राउंड का फार्मूला लगाना है, इस पर क्लिक करो, फार्मूले पे उधर जाओ, जहाँ पर आपने B18 लिखा है, इससे पहले आपने लिखना है राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो B18 के बाद, और इसके बाद नहीं B18 के बाद कॉमा डाल के 0 लिखो, या 1 लिखो, सॉरी, या 1 ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर करो, ओके करो, देखो ओके कर दो, देखो कि खुद ही सेट कर देगा, ठीक हो गया। अब फार्मूला जो है उसने आपको राउंड कर दिया, 36 कर दिया इसको, ठीक है, तो ये परसेंटेज होगी। अब इससे पहले वाले को आपने 1000 डेसिमल में लेके जाना है, अब वो भी इसी तरह जो है वो B5 से पहले आपने इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसका जो है वो आपने, जो इसका स्टाइल होगा वो देखो कि क्या कहोगे तो वो जो है वो 1000 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो कोई ना कोई उसकी ऑप्शन होगी, वो उसको फॉर्मेटिंग को डायरेक्ट नहीं उठा रहा, तो आपको वहीं पर B5 के अंदर, फार्मूले के अंदर B5 में करवाना होगा, फार्मूले में जाओ, के अंदर, पहले के में जाओ,
या इस फार्मूले के अंदर सब कुछ कंट्रोल होगा आप। ठीक है, तो ठीक ये जो B5 है इसके अंदर, जी। इससे पहले तुम्हें कुछ लिखना है, जिस तरह हमने राउंड का फार्मूला लगाई है ऑप्शन, इसी तरह आपने वहां पर कुछ और देखना है कि वो जो उसको ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है इसको वो 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट कर दे। नो एंड okay, so what is going on? So comma, we have comma. Yeah, I think we have extra bracket closing. So there's the one comma, you need to be removed that one. So yeah, this one has to be removed. No, yeah, this one too, one more. So yeah, close it properly. And now you need a quotation mark. Yeah. So now your formula is what is going on? Yes. Has worked? Okay. Yes, sir. So can you go back and see what the formula is? So text. Okay. So we have this one space and then we have. Okay. And now we need a decimal place. So can you, yeah. So now you can control select all up to the all the way down and then control D. Okay, and then the same thing is select first row like K5 and then all the way and then control R. Okay, and then maximize it. So this is the way you will have the table. Okay, finally, and then you will see the grand total. Can I see the grand total? वो कैसे नजर आ रहा है, देखते हैं इसको। Yes, sir. हाँ, इसमें अब वो आपको थोड़ा सा मैनुअली देखना पड़ेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो 100% है ना ऑलरेडी। तो वी नो 100%, तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले में फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो अब अंडू कर दो, वन अंडू करो एक दफ़ा और, जब तक वो राइट वाला जो है फार्मूला उब तक अंडू करते जाओ। हाँ, अब आपने सिर्फ ओ तक जाना है, पी में शामिल नहीं करना है इसको। ठीक है, कंट्रोल है, ठीक हो गया। Yes. तो अब ये जो है ना टेबल आपका इस तरह का बनेगा, एक टेबल जो है एटलीस्ट। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे तरीके से कि इसकी रोज में क्या है, कॉलम में क्या है, फिर ईच वैल्यूज जो है वो कैसे रीड करनी है। पर्टिकुलरली जो परसेंटेज है, ये रो परसेंटेज है फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उसकी फिर आपने एग्जांपल देनी है कि जो फॉर एग्जांपल जो है वो एबटाबाद में जो है 188,417 बिल्डिंग फुटप्रिंट जो है, द टोटल ऑफ इज आउट ऑफ दैट। So 23.5% of the buildings out of 188,417, they are fall within this range. Yes, ठीक sir. हो गया। तो ये आपकी रिजल्ट्स के अंदर जब आप उसको लिखोगे टेबल को, तो ये उसी वक्त आपने एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू गोइंग टू बी रीड दिस वैल्यूज। जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जो Yes, टोटल sir. होगा वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि टोटल जो है वो आपका फर्स्ट जो है वो कॉलम जो है वो, अगर आप टोटल करोगे 46.7 और 22.5 और 22.9, ये दो जो परसेंटेजेस हैं ये नॉर्मली एलिजिबल रेंज में नहीं है, कंफर्टेबल रेंज में नहीं है। तो आपको जी। अंदाज़ा हो जाएगा कितने परसेंट है। अब इसमें कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो पहली दो कॉलम की वैल्यूज़ कम है, जितनी कम होगी बाकियों में ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो वहां से फिर आपने डिस्कस करना है कि हाईएस्ट किसकी वैल्यूज आ रही है परसेंटेज वाइज, और लोएस्ट किसकी होगी, वो हमने फिर मजीद रिजल्ट्स के अंदर डिस्कशन में लेके जाना है कि सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिल्डिंग्स। जी। ठीक है, और जो जिसमें सबसे कम होगा, तो वो पैटर्न फिर आपने रिजल्ट्स के अंदर डिस्कशन करनी है। बिल्कुल ठीक है। Yes. ठीक हो गया। तो अब आपका ये जो जी। टेबल होगा, दिस इज द टेबल काइंड ऑफ टेबल, जिसमें हम बाद में हेडिंग जो है सारी वो ठीक कर लेंगे, लेकिन इसकी जो जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो मैंने आपको समझा दी है। अब आपने एक जी। और काम करना है, ये जो वर्किंग वैल्यूज हैं K5 से लेके P14 तक जो है इसको सिलेक्ट करो। एक मिनट सर, स्टक हुआ है। K5 से ये लोड हो रहा है बस जस्ट। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कैसा रहा ये, सही, अच्छा अच्छा आइडिया ये वाला। जी जी सर, ये तो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं।
प्रॉपर सही हो गया। ठीक है ना, एक ही टेबल के अंदर आप बहुत कुछ जो है वो कन्वे कर रहे हो। जी। ठीक है। हम्म, और जो दो इंडिविजुअल टेबल्स हैं उनमें से किसी को आप चार्ट की शक्ल में भी ऐड कर सकते हो, एक का चार्ट बना सकते हो, तो उसको आप दिखा भी सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा कम है परसेंटेज में, और यहाँ से नंबर और परसेंटेज इकट्ठे आ जाएंगे। हम्म, ठीक है। K5 से शुरू करना है आपने। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्चुअली ये सारी सिलेक्ट करनी है, और इनको आपने राइट अलाइन करना है सेल के, सारा टेबल नीचे तक ले जाओ, या सारा पूरे का पूरा राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ से, और तीसरे को भी शामिल, हाँ इसको भी करो। अब इसको जो है ना ऊपर से जो उसकी जो राइट लाइन है ना, ये नहीं इंडेंट नहीं करना, ये भी नहीं, इसके ऊपर साथ लेफ्ट वाला जो है ना वो है सारा फॉर्मेटिंग, ये वाली जो है, नहीं नहीं लेफ्ट, ये वाली ये उसकी है, तो ये आपने ये लेफ्ट राइट वाला करना है, राइट अलाइन करना है कि नंबर आपके सारे के सारे यहाँ से आ जाएं, तो वो परसेंटेज एक लाइन में आ जाएगी। जी। ठीक है। ठीक है तो सर। अब तो आपको मैनुअली जो है ना इस टेबल को आपने डेड टेबल बनाना है अगेन, क्योंकि इसमें फार्मूला लग चुका है। ठीक जी। है। तो जहां पे डेसिमल नहीं आया, तो मसल 36 है तो इसमें 36.0 करना है। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसी सूरत में होगा जब ये आप इसको फार्मूले से हटा दोगे। तो एक दफ़ा फिर जी आपको मैंने। इसकी कॉपी बनानी है, तो अब आपको इसके नीचे वाले हिस्से में इसको पेस्ट कर देना है, जो ओवरराइट कर दो उसको, जो नीचे बना हुआ है परसेंटेज, नहीं नहीं ऊपर जाओ, ऊपर और जाओ, ऊपर जो है वो 16 से शुरू करो, J16 से, या यहाँ से ओवरराइट कर दो जो कुछ भी है। ठीक हो गया। अब इसको आपने कंट्रोल नहीं कर, इसको अंडू करो वन टाइम, और उसको डेड वैल्यूज लेके जानी है। ठीक है। राइट क्लिक करके तो आपने सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना है, या ठीक हो गया। हम्म, अब इसकी फॉर्मेटिंग जो होगी, तो मैनुअली जो भी चेंजेस करोगे तो आपकी फिर वो फाइनल टेबल में जाएगी अब आपकी। जी। ठीक है। तो अब ठीक है। इसका ये होगा कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, तो वो अच्छे हम्म, लगेंगे। आप 36.0 करो ज़रा इसको। ठीक है। अब इसी तरह जो नीचे रो में जाओ 50 है, 50.0 हो जाएगा। और इस रो में तो सारे हो गए, सेकंड वाले में भी तकरीबन ठीक है, थर्ड रो में भी सारे, एक है 8 वाला जो है वो M26 है ये वाला। ठीक है। और 12 भी है ऐसे ऊपर वाला भी। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी तो वो आपको एक पूरे एक रीडिंग में आसानी हो जाएगी। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको अब जाहिर बात है प्रोसेस आपको समझ आ गया है। तब आप जी। अगर आप फिल्टर अप्लाई करके हम्म, अगर किसी तरीके से, और वो वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी अगर आप एडजस्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। जी। सर वो दो बल्ले से ऊपर ऊपर कर रखने चाहिए ना, क्योंकि मरले पहले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि जो मरले से थोड़े से छोटे हैं ना उसको निकाल दो, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं होंगी ठीक ना, है। फिर वो एरर होंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो उससे जी। बाद अगर छोटे यूनिट हैं एक मरले के, तो या उससे नीचे वाले हैं इट्स ओके, लेकिन जो हम्म, बिल्कुल ही जीरो जीरो वाले हैं डेसिमल मरला में है, तो वो आपको मेरा ख्याल है कि हमें नहीं चाहिए उसकी। बाकी यूनिट्स हैं ठीक है। वो ठीक है, हम उसमें लिमिटेशन में डालेंगे कि हम्म, ये जो बिल्डिंग्स हैं इसमें किस किस्म के जो साइज शामिल हैं, इसको फर्दर रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जी। फिर मज़ीद कोई एविडेंस चाहिए जिसको हम कंसिडर करें कि ये साइज जो है वो इससे ऊपर वाला जो है कंसिडर होना चाहिए, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है। है। और इसी तरह जी। वो जो लास्ट कॉलम है उसको भी कॉमा के वाले में कन्वर्ट कर दो ऑटोमेटिकली, पी कॉलम को, सो 1000 सेपरेटर में 0 डेसिमल के साथ। ठीक हो गया। तो ये ठीक है। आपका टेबल जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसको आपने रो वाले को लेके जाना है, तो यहाँ पर रो नहीं नहीं, ये ऊपर वाला नहीं जाएगा, अब पहली रो नहीं जाएगा। हाँ यहाँ इसको कर दो डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ स्लैश डालोगे, तो इसका मतलब यह है कि जो सेकंड टाइप जो जा रहा है उसको जो नहीं स्लैश का बटन, इसको या फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दो, सिर्फ से डिस्ट्रिक्ट रहने दो, स्पेस खत्म कर दो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है एक।
जो ऊपर वाला होगा उसके ऊपर फिर आप एक कॉलम जो है, कॉलम लेबल जो है ना, उसको रीनेम करो आप, या इसको आप जो है वो यहाँ पे आप जो भी लिखना है, ये क्या चीज़ है आपकी, जो पोटेंशियल है, कैटेगरीज जो है, या परसेंटेज ऑफ या पर मरला, पीवी पोटेंशियल, ईयरली पोटेंशियल, कैटेगरीज। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरीज भी हैं और एनुअल वैल्यूज है, और ये आपकी पोटेंशियल की है, यूनिट्स की नहीं है। ठीक है, तो ये जी सारा वो सारी चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में आपने आप डालनी, और ये पूरा हेडर तक आखिर तक जाएगा ये, इसको ये जितने भी सेल होंगे सारे मर्ज हो जाएंगे फिर। ठीक ठीक है। है, यहाँ तक आपके जी ये सेल मर्ज हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ये जो ऑब्जेक्ट आईडी वाला जे कॉलम है और डिस्ट्रिक्ट है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे मर्ज। इसको उड़ा दो, ऑब्जेक्ट आईडी को डिलीट कर दो, हाँ, और इसको आप दोनों को सिलेक्ट करके तो मर्ज कर दो। तो ये आपका एक टेबल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसको फिर आप सारे टेबल को सिलेक्ट करो अब, और इसके बाद इसको, इसका जो लाइनिंग है, आउटलाइन है, इसको नहीं कुछ करोगे, वो जो लेफ्ट साइड पे, या इसको जो है वो सिलेक्ट करो, इसका बॉर्डर लो, ऑल बॉर्डर जो है वो। ठीक है, और इसके जी बाद जो है वो आप इसके बाद हिस्सों को डार्क करोगे, बाद को मुख्तलिफ शक्ल में इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर करोगे फिर इसकी। ठीक है, जो टोटल वाले होंगे उनको ग्रैंड टोटल की बजाय सिर्फ टोटल कर दो, टोटल हाउसेस कर दो, टोटल बिल्डिंग फुटप्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो ग्रैंड टोटल का वर्ड जो है वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, इस तो टोटल बिल्डिंग यूनिट्स, और इसका शॉर्ट यूज़ कर लो, बिल्डिंग फुटप्रिंट का जो है आप यूज़ करते हो तो एब्रीवेशन यूज़ कर लो इसके अंदर। ठीक है, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स एस। तो इसी तरह जो नीचे ग्रैंड टोटल है, इसके अंदर जो है वो आप इसको भी आप तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक ठीक है। है, इसको जी सिर्फ टोटल कर दो, ग्रैंड छोड़ दो। अब जो पर मरला है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर, इसके आखिर में आपने एक्सप्लेन करना है कि ये वैल्यूज क्या है। ब्रैकेट में आएगा नंबर ऑफ बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, फिर आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, उसको लिखोगे इन ब्रैकेट जो आएगा, ब्रैकेट साइन डालो, और ये लिखोगे आप परसेंटेज ऑफ रो, परसेंटेज ऑफ द रो, इन अदर वर्ड द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आप पर डे वाले को वहीं से पता चलेगा कि ये जो नीचे जो इंफॉर्मेशन है ये परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और इन अदर वर्ड्स इसी के साथ लिखोगे डिस्ट्रिक्ट, इन अदर वर्ड्स परसेंटेज ऑफ रो, कॉमा डाल के, सेमी कॉलम डाल के, तो इसमें परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ रो टोटल। ओके, ठीक हो गया। इसको मजीद आप रिफाइन कर लेना, और एक लाइन में भी फिट हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट। तो नंबर साइन यूज कर लो आप वहां पर। ठीक है, नंबर वर्ड की बजाय नंबर कर दो, या परसेंट की जगह परसेंट का साइन यूज कर लो, उसमें स्पेस दो पहले। या ठीक हो गया। तो दिस इज अ वे, आप जो है वो आपका जो है वो एक किस्म का ये पूरा टेबल बन जाएगा। अब आपको सिर्फ ये है कि इसी को भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप चाहते हो कि इसको जो है वो जो छोटी बिल्डिंग है, बिल्कुल स्मॉल यूनिट्स जो हैं, जो उसको हमने फिल्टर करना है, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट वन। जी जी ओके, तो अब आपके पास दो टेबल हो गए, एक ओवरऑल है, ओवरऑल पे वापस जी। जाओ। एक मिनट, मैंने कंट्रोल एस दबा के वो लोड हो रहा था। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो ये मेरा ख्याल दो टेबल काफ़ी कम्प्रीहेंसिव है, और इनमें से जी जो बाकी छोटे छोटे टेबल हैं, जो एक सम टेबल है जिसमें आप पिवट टेबल चार्ट वगैरह बना के देख लो, कि जिसमें आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो, हाईएस्ट और लो वैल्यूज जो है, हम्म, तो वो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो अब जी आपको प्रोसेस समझ आ गया है। जी आप जी ये सारे का बिल्कुल। सारा रिपीट कर सकते हो, और थोड़ा सा गैप इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जब आप फिल्टर ऐड करते हो तो वो सेल ओवरलैप ना कर जाए।
तो इसलिए फिर वो आपको दोबारा ऐड करना पड़ेंगे रोज, उसको एक दूसरे को सेपरेट करनी। तो इसलिए 14-15 से शुरू करो तो ज़्यादा बेहतर है जो उसकी कॉपी होगी, क्योंकि जब आप ऊपर ऐड करोगे फिल्टर तो वो थोड़ा सा नीचे पुश करेगा उसको। जी ठीक है। ठीक हो गया? तो रिजल्ट्स यस आपके जी। मेरे ख्याल दोनों अब काफ़ी हैं। अब तीसरा जो रिजल्ट होगा, पहला आपका हो गया ओवरऑल स्टडी लेवल पे, जी उसी के साथ आपने डिस्ट्रिक्ट की एक्सप्लेनेशन साथ में ऐड कर दी, और यहाँ पर जी एक चार्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ओवरऑल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा बनता है अच्छा, कि आप परसेंटेज का बनाओगे तो वहाँ ठीक से है। फिर आपको एक्सप्लेन करना जो है वो आसान हो जाएगा कि जो ये वाला टेबल है। तो चार्ट जी आपको हेल्प करेगा, स्टैटिस्टिक्स देने देगा उसकी कि कौन सा वाला जो हाईएस्ट परसेंटेज में, कौन सा लो वाले में है। जी, देखकर डिस्ट्रिक्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ। यस। ठीक हो गया? तो अब इसको वो जो स्टैग होता है ना, वो कॉलम, अगर इसको सेलेक्ट करो, इसको सारे को, इसको लेबल को चेंज करके, तो इसको करो, लेबल को पहले चेंज करके डिस्ट्रिक्ट करो इसको, इस वाले को नहीं, नीचे वाले को, या इसको डिस्ट्रिक्ट कर दो, और यहाँ से सेलेक्ट करके रिमेनिंग जो है वो टेबल सारा सेलेक्ट कर लो, इस यहाँ से 17 से। ठीक है, ये वाला पूरा टेबल सेलेक्ट करो। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आप जाओ, यहीं से ऑप्शन है, नहीं, ठीक है, तो इसको टोटल को करना है कि नहीं करना, चले दोनों में डिसाइड करते हैं। इंसर्ट करो अब। इंसर्ट के अंदर जो है वो आप चार्ट लोगे, बार चार्ट, और इसके अंदर आएगा ऑप्शन, एक आता है, मैं बताता हूँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन आएगा, तो वो आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा सेकंड वाला, ऊपर से सेकंड, फर्स्ट रो में सेकंड वाला। ठीक है, हाँ, इसको ट्राई करो। ठीक हो गया? अब ये जी क्योंकि 100% बराबर बन रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि जो पहली दो कैटेगरीज हैं, किसकी 60% से ऊपर है, किसके नीचे है। एप्टाबाद जो है वो 60% तक है, पहली दो कैटेगरीज का सम। जी। बैटाग्राम में 60 से ऊपर है। तो अगर आप इस चार्ट हम्म, को नीचे थोड़ा सा एक्सपैंड, नीचे खींचोगे और टाइटल को ऊपर से उड़ा दोगे, उड़ा दो टाइटल को, डिलीट कर दो इसको। ठीक है, नहीं, वो उसको बार को ख़त्म करो, हाँ। अब इसको थोड़ा सा नीचे से इसकी चौड़ाई जो है बढ़ाओगे, तो वो 20 का इंटरवल है, तो वो 10 में चला जाएगा। और मज़ीद करो इसको थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और इसका भी इंटरवल जो है वो आप अगर बढ़ा भी सकते हो, लेकिन आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में, ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरवल बाद में कर लेना। मैं आपको जो समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो पहली दो क्लासेस हैं जो जी बॉटम से स्टार्ट होती हैं, ये आपको आइडिया दे रही हैं कि कौन सी जो है वो बेहतर है, कौन सी नहीं है डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें अगर आप देखो कि एप्टाबाद सबसे बेहतर है, इन अदर वर्ड्स कि इसका 60% जो है वो फर्स्ट टू क्लासेज हैं, तो रिमेनिंग 40% हो गया है। जी। ठीक है, हम्म, बडग्राम में 60 प्लस है, बुनेर हम्म, में भी यही है, हरिपुर में भी इसी तरह है। तो कोई और ऐसा नहीं है जो 60 से कम हो। सबसे जो आप देखोगे तो स्वाबी जो है, इसमें बहुत कम हाउसेज हैं एलिजिबिलिटी के। ठीक है, तो हम्म, पहली दोनों क्लासेस जो ऑलमोस्ट 80% है, 78 और 79% होगा दोनों का जी सम। जी ठीक है, तो ये एक आपको हिंट मिल रहा है यहाँ से कि हाउ यू कैन रीड दैट वन। यस, ठीक हो गया। ठीक हो गया? तो आप इस जी। तरह का एक चार्ट बना के छोटा सा, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम्म, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर ये वाला जो होगा, ये टेबल के साथ जिसमें परसेंटेज और तुमने नंबर दिए हुए हैं, दोनों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। जी डिस्कशन, जो रिजल्ट्स बिल्कुल। की डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। ठीक हो गया? जी जी। तो अब आपके दो जो है, पहला ओवरऑल डिस्कशन, हम्म, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्कशन। अब हमने तीसरा जो मैप बनाना है यूनियन काउंसिल लेवल पर, उसके रिजल्ट रह गया है। जी ठीक है, तो अब जरा सर। यूनियन काउंसिल वाला लाओ जरा दोबारा, अगर कोई मैप आपके पास रेडी टू। सर जस्ट 1 मिनट सर। सर अगर तहसील में कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, यूनियन काउंसिल ज़्यादा बेहतर है। मैपिंग यूनियन काउंसिल लेवल पे करनी है, क्योंकि वो जितना हम लोएस्ट लेवल पे जा सकते हैं, दैट विल बी द ग्रेट, क्योंकि हमें सर बिल्डिंग वो तो फुटप्रिंट। काफ़ी बड़ा टेबल बन जाएगा क्योंकि वो नहीं नहीं, मोनेस्ट्री टेबल नहीं अंदर बना है। रहे हम, मैप बनाएंगे। ठीक है ठीक है। मैप तो ड्राइंग बनाएंगे, करेंगे।
लेकिन आपको ठीक है। मैप दिखाना है मुझे, जो पहले बना हुआ था उसी को मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपने क्या करना है अब। ठीक है। अब हमने एक डिसीजन लेना है कि जी। कहाँ से कट ऑफ लेना है आपने। हम्म। ठीक है। क्योंकि यूनियन काउंसिल के लिए आपको चाहिए कि हम कहेंगे कि जी लेट सपोज जो है वो सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, आप दो सिनेरियोज बना सकते हो। अगर आप हम्म। सिनेरियोज नहीं बनाना चाहते तो फिर आप ये कर सकते हो कि एक ही वैल्यूज आप लोगे जो कट ऑफ वैल्यू। अगर आपने 750 लेना है कट ऑफ हम्म। वैल्यूज को, तो जो जी। आपके जो पहले दो टेबल हैं उसमें से जो कैटेगरीज आपकी जो कट ऑफ वैल्यूज आती है वहां से आपने फिर बात करनी है आगे, कि हम जी। यहाँ से इस हम अज्यूम करते हैं, या हमारी जो पहली जो एक बिग एजम्पशन है कि वेयर वी विल ड्रॉ द लाइन, तो वी सजेस्ट लाइक 750 एंड बिलो इज नॉट ए recommended, like we are हम्म। not excluding it but they're not recommended. So we just for the in case of we want to shortlist the union consuls, so we will be talking about 750 and above. हम्म। ठीक ठीक है। है। तो वो जी। जो कैटेगरीज होगी तो आपने परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स निकालनी है एट द यूनियन काउंसिल लेवल। हम्म। ठीक है। बिल्कुल तो सही। पहले आप टेबल बनाओगे यूनियन काउंसिल का। जी। ठीक है। और फिर उस जी। टेबल को यूनियन काउंसिल के साथ ज्वाइन करोगे, और फिर वो जो हम्म। मैप आपने बनाया हुआ है वो मैप दिखाओ जरा मुझे दोबारा। तो उस मैप को आपने जो है वो बेसिकली ये वाला जो मैप है यूनियन काउंसिल के लेवल पर, तो ये आपका फिर जो परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज जी। को आपने जो है वो उसको कैटेगराइज करना है फिर आपने। हम्म। ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक तो वो आपकी हम ये कहेंगे कि जी इसमें एक एक यूनियन काउंसिल में, जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट में बात की है, तो डिस्ट्रिक्ट में है। जी। हमारे पास 5 के ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब हमने इसमें जी। दो ऑप्शन दे दिए हैं कि जी। टोटल आपने। बिल्डिंग का वो परसेंटेज जो 750 एंड अबव है वो जी। हम इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे दिखाएंगे इसके ऊपर। हम्म। ठीक है। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इन आखिरी तीनों कॉलम से सम लेने और उसका सम को ही हम लोग नहीं नहीं, उसमें वो ज्वाइन टेबल करें। बना हुआ है उसमें सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट वाले टेबल को दोबारा से कॉपी करना है। अगर जी, आप वो तो। पहले आप प्लान समझो कि मैप जो बनेगा वेरिएबल कौन सा होगा जो मैप करोगे। मैप के ऊपर वापस जाओ। तो यहाँ पर आपने यूनियन काउंसिल की लिस्ट लेके आनी है इस टेबल मैप के साथ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग विच हैज पोटेंशियल 750 एंड अबव। ठीक है। ठीक है। तो उसका फिर जी। आपने वहां से परसेंटेज निकालना है। वो हम्म। परसेंटेज जो होगा यहाँ पर आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देनी है। तो वो यूनियन काउंसिल हम देखेंगे कि किसकी कितने परसेंट हाई है। जैसे एबटाबाद में आपको पता है 40% यूनियन डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 40% जो है वो एबटाबाद जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है वो 750 प्लस पोटेंशियल है। जी। ठीक है। तो अब उनमें से कितनी यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो ओवरऑल वो जो हमारे पास जो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी, कौन सी लो वाली है कौन सी हाई वाली है। हम्म। ठीक है। ठीक होगी। तो वहां पे ठीक है। हम परसेंटेज को जो कैटेगराइज करेंगे तो वो हम करेंगे 2020 के इंटरवल से। ठीक है। हम्म। 20%, 40, फिर तो 5 क्लासेस बना देंगे। तो जी। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है। ठीक है। तो अब जो जी। सी हाई फॉल होगी तो आपको नजर आ जाएगी, जिस हमने कहा था कि 60% से बिलो कौन सी है, 50 ऑन कौन सी है। तो वहां पे जो जी। बिल्डिंग होंगी जहां पे 40 to 60 की रेंज होगी वो हम रिकमेंड कर सकते हैं कि इस यूनियन काउंसिल में काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई जी। यूनियन काउंसिल कम तो हो सकता है कि हम जो कैटेगरी बनाएं चार बना लें, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100। ये सब बिल्कुल सही। ठीक है। तो कोई भी जी। 4 से 5 क्लासेस हम बना सकते हैं उसकी। ठीक है। तो ठीक वो है। जो क्लासेस होंगी वो हमें बताएगी कि कौन कौन सी यूनियन काउंसिल जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। हम्म। ठीक है। उस टेबल का फिर हमने एक समरी टेबल भी बनाना है। नंबर ऑफ काउंट्स जो होगा वो यूनियन काउंसिल्स का आएगा फिर उस जी। मैप को समझने के लिए कि एक डिस्ट्रिक्ट हम्म। में टोटल कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं ठीक है। और उनकी यस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हम्म। ठीक है। तो वो जी। जी, फिर बिल्कुल उस सही। मैप को एक्सप्लेन करने के लिए टेबल आएगा आपका। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। तो नाउ प्लान इज क्लियर। जी, जी सर। तो सर आपने अभी तो जी मैप्स के लिए मैं अभी जो जितना मुझे क्लियर हुआ है कि हमें एक
3 कॉलम्स चाहिए, एक जो कॉलम जो टोटल बिल्डिंग्स बता रहा होगा, एक हम्म कॉलम बताएगा कि कितनी परसेंट बिल्डिंग है जो 750 से अबव है, और हम्म। वही उनकी परसेंटेज आ जाएगी कि लाइक इतनी बिल्कुल। इतनी बिल्डिंग है परसेंटेज, तो और उसी आप परसेंटेज का मैप बनाना वो है। परसेंटेज कैलकुलेट ना भी करो तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पता है कि आप नॉर्मलाइज कर जी सकते हो, डिवाइड कर जी सकते जी हो। जी ठीक है। जी बिल्कुल। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आप ऑन द सेफ साइड, यस अगर सर। आप ये सारी कैटेगरीज के एज इट इज ले जो यूनियन काउंसिल पे है, तो आप वापस जाओ डिस्ट्रिक्ट टेबल पे, डिस्ट्रिक्ट टेबल को कॉपी करके पहले वाले को आप एक नई शीट के अंदर ले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बजाय, डिस्ट्रिक्ट के बाद यूनियन काउंसिल भी, यूसी डाल दो ना, तहसील भी डालो, डिस्ट्रिक्ट भी डालो, सारे ऐड करते जाओ और एक सीक्वेंशियल में। पहले तहसील डालो, तहसील, फिर तहसील का कोड आएगा। इसी तरह हर एक का, क्योंकि अगर आपको किसी लेवल पे भी मैप बनाना हो तो यू कैन डू दैट देन। फिर ठीक हो कोड गया। भी साथ डालो। कोड भी इसी तरह मूव करते जाओ, इसी तरह इसी रो में डाल दो इसके बाद या। ठीक है। अब जी आपने पहले एक काम करना है कि ऊपर से जाओगे डिजाइन में, डिजाइन जो पिवट टेबल के बाद है, या, और जी इसके अंदर जाओगे रिपोर्ट के अंदर, और इसमें रिपोर्ट लेआउट, इसमें इसको कहोगे शो टेबुलर, शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। अब सेकंड जाओ ग्रैंड टोटल में, या इसी तरह इसमें जाओगे, इसका सब टोटल ऑफ कर दो। सब टोटल में जाओ पहले, सब टोटल में, और इसको जो करो कि शो, नो, डू नॉट शो सब टोटल्स। ठीक हो गया। ये अब आपका टेबल आ गया। और जाओ दोबारा रिपोर्ट लेआउट में, इसमें जाके करो कि रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। यस। हम्म, ठीक हो गया। अब ये आपका एक टेबल की शक्ल बनती जाएगी। जी ठीक हो गया। अब इसी में आप ठीक है। यूनियन काउंसिल भी ऐड करो, तो आपका जो है वो यूसी का नेम और यूसी का कोड। और इस टेबल को थोड़ा सा जूम आउट करो आफ्टर दिस, तो अब हम इसकी शेप देखते हैं। कोड ये भी ऐड हुआ अभी, या कोड भी आ गया। अब इसको जूम आउट करो, जी सर। ठीक हो गया। और भी थोड़ा सा जो कॉलम की जो जो इसकी साइज है थोड़ा सा छोटा करते जाओ, क्योंकि काफ़ी वाइड है ये ऊपर से। सारों को सिलेक्ट करके, हाँ, इकट्ठा सेलेक्ट कर लो जी से ऑनवर्ड सबको, या। तो अब आप इसको या डबल क्लिक करो और ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो टेबल है, इसमें आपके पास यूसी और यूसी का नेम और यूसी का कोड भी आ गया है। यहीं से जी अगर आपको एग्रीगेट करना हो दोबारा, जब इसको डेट टेबल बनाओगे, तो आप जी। इसको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो। हम्म, ठीक है। और इसी को यस। तहसील लेवल पे भी एग्रीगेट कर सकते हो। कोड भी सबका मौजूद है, तो अगर आपको कहीं से भी कोड लेना है तो बजाय आप एक्चुअल डाटा पे जाओ, आप यहाँ से भी कर हम्म सकते हो। ठीक ठीक है। है। तो बाद में यस फिर सर। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 750 एच कॉलम, आई, जे, तीनों को इकट्ठा करना है। जी ठीक है। बिल्कुल ठीक इसका सम है। लोगे जी और डिवाइड बाय द जी कॉलम के। ठीक है। जी तो वो सेकंड आपका क्या जो है है? वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से टेबल जब फाइनल हो जाएगा आपका फिल्टर लगने के बाद, जी तो आपने इसका डेट टेबल बनाना है। ठीक। ठीक है। और जी जी इसके बाद जो है वो आपने एक नया कॉलम ऐड करना है, इन तीनों कॉलम को ऐड करके, तो यहीं पर आप प्रिपेयर कर लो अपना जो आपको सारा टेबल चाहिए। और ये सारी हम्म इंफॉर्मेशन जो है फिर आप वहां पर ले जाओ और हम्म यूनियन काउंसिल के कोड के साथ उसको ज्वाइन करवा लो। नाम इसलिए रखे हैं कि जब आप ज्वाइन करो, तो आपने मेक श्योर करना है कि ज्वाइनिंग के वक्त रैंडमली 5 या 10% नाम जो है, या हम्म रैंडमली 5-10 नाम जो है वो आपने चेक करना है कि वो जो है जो एक्चुअल शेप फाइल के अंदर यूसी का नेम है और आपके टेबल के साथ जो नेम आ रहा है वो मैच कर रहा है। जी बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अब कहाँ तक कॉलम गया है, नंबर लास्ट कॉलम क्या है, नंबर रो नंबर क्या है, कितना रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ये हमारे थ्री पास जो ट्वेंटी है वो 321, तो ये 319 के थ्री करीब जो नाइनटीन है वो यूनियन काउंसिल्स हैं। जी ठीक है।
तो ये जो जी होगी इनके अंदर अब कितने परसेंट जो है वो 750 और उससे ऊपर वाले को अगर हम करेंगे तो वो हमारा फिर आगे सारे डिस्कशन में आएगा। तो जो मैप होगा और इसके साथ ये जो टेबल इसकी बेस के ऊपर टेबल बनेंगे फर्दर, वो हमारे डिस्कशन में आएंगे। इसको हम्म, रीनेम कर लो, यूसी टेबल कर लो। ठीक है, तो अब आपका जो है वो सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हो गई हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप यहाँ से दो मैप भी बना सकते हो यूनियन काउंसिल लेवल पे। मजीद अगर आपने कोई एक्सप्लेन करना है, वैसे सिनेरियो वन जो है वो आप 750 को ले सकते हो। जी ठीक है, और या फिर और ऑप्शन कोई आप यूज़ करना चाहते हो तो वो हमारे पास अब कंट्रोल मौजूद है कि हमारे पास ये नहीं कि हमने सिर्फ एक कॉलम लेके आए हैं, वी हैव ऑल द अदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन वी नीडेड। यस। ठीक है, जी तो ये आ जाएगा इसमें। अगर आप जो है वो एवरेज बिल्डिंग का जो है ना वो भी ऐड कर सकते हो, जो मरला क्या है, एवरेज साइज क्या है बिल्डिंग का। ठीक है, तो मैप या लाइक इसमें इसी कॉलम में ऐड करना नंबर है? डाल सकते हैं एवरेज सभी। ठीक है, तो वो आपका वैल्यूज में जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यूज होगी वो एवरेज होगी। जी ठीक है, तो आपको अब वो वैसे तो ऐड कर रहा सारा, लेकिन मैंने आपको टेक्निक बता दी थी, वो ईच कैटेगरी के अंदर ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो यूनिट कितने हैं और इसमें एवरेज साइज का, तो अभी ये काउंट दे रहा है तो काउंट को आप कन्वर्ट करो, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, मरले को इसको नहीं, काउंट ऑफ मरले को राइट क्लिक करो, नहीं नेम को नहीं, हाँ चलो नेम कर दो, इसको एवरेज कर दो। ठीक है, अब ये एवरेज साइज देगा आपको। ठीक है, जी तो वो आपका आ गया। तो अब इस तरह आपका बाग के अंदर यूनियन काउंसिल जो फर्स्ट है उसमें 426 यूनियन काउंसिल है और उसमें एवरेज जो है 1.6 मरला है। जी जो लेस ठीक है, रिक्वायरमेंट आगे बढ़ता जाएगा तो आपको वो मिलता जाएगा हर कैटेगरी में मरला क्या है। है। यस। ठीक है, तो ये टेबल भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कहीं पे मरलों को भी दिखाना हो तो आप इसको कर सकते हो। इसलिए जब आप डाटा यहाँ से लेके जाते हो तो कोशिश करो कि जो वेरिएबल आपको चाहिए वो तो हो, लेकिन और भी सपोर्टिंग वेरिएबल हो जो वहां से आपको कहीं मूव करना हो, इधर उधर कहीं और काम करना हो, तो यू कैन डू दैट इजिली। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया, तो इसको फिर ये एक बिल्कुल। आसान काम है कि इसका जो नेम है ना उसको आप कर सकते हो, उसके साथ एन डाल दो, जो जो इसका हेडर है ना उसको ऊपर जाओ दोबारा, काउंट जो है ना, काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना, इसको क्लिक करो नीचे, या इसको लिखो जस्ट एन। ठीक है, एंटर कर दो, ये सारे एन हो जाएंगे अब आपके। ठीक है, एवरेज वाले को एवरेज मरला कर दो, सिंपल, और एवरेज की जगह भी ए वी ई कर दो आप, या मीन कर दो, वैल्यू मीन लिख दो, मीन मरला मीन या मीन मरला। ठीक है, या एंटर। तो अब ये सारा आपका टेबल एक रीनेम हो गया। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो जाएगा, ऊपर कैटेगरी आ गई और नीचे उसके अंदर जी दो हिस्से आ गए। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो कॉलम के अंदर जो है ना वैल्यूज को जो है ना इसको ऊपर ले जाओ, और कॉलम के अंदर, जो कॉलम के अंदर, हाँ इसको ऑर्डर चेंज कर दो ऊपर से। ठीक है, तो आप इसको देखोगे कि आपका टेबल की स्ट्रक्चरिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है। जी ठीक है, तो अब ये दोनों ऑप्शन मौजूद है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज को लेके जाना है, तो आप उस तरीके से उसको ले जा सकते हो। जी जी। ठीक है, तो तो जब लेकिन दो, मैं ज्वाइन, क्योंकि ये बार बार एन रिपीट हो रहा है, जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये लाइक नहीं, टेबल अब आगे आप पीछे जब नहीं हो ज्वाइन जाएगी? करोगे तो आप इसको रीनेम करोगे अब, जी कॉलम के तो ये और वो जी बनेगा सिंगल सिंगल हेडर बनेगा। जी। यहाँ पर डबल दिखाएगा लेकिन आपको उसको डेट टेबल बना के तो उसके साथ हम्म, लिखना होगा कैटेगरी और अंडरस्कोर जो है वो उसका जो दूसरी सेकंड ऑप्शन होगी उसके अंदर। जी बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है, तो इसलिए इनका जो जी ऑर्डर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलम के अंदर आप इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो, बजाय बाद में मैनुअल करते फिरो, तो यू कैन हम्म, चेंज द ऑर्डर ऑफ दोस कॉलम्स, तो आपको फिर डिफाइन करना आसान हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक हो गया, यस बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि अब आपका जो एनालिसिस प्लान है जी वो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट है। अब अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है, हम्म, वो सोचना है कि आपने कैसे फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, जी वो मैं देख लूँगा। यस। उसका एक तरीका है, अगर आप चाहते हो तो डेटाबेस के अंदर जो पीछे आपने
एम एस एक्सेस का डाटा इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके ठीक है, साथ नहीं है वो, ये सब इसके साथ इस नहीं है। सेकंड में नहीं है। नहीं, कल आपने वो MDX बनवाया था, एमडीएक्स ही इसके है ना साथ। वो, डाटाबेस ही है ना वो। जी जी, तो ठीक है। उसमें जो टेबल है उसमें से तुम ये कर सकते हो, कुछ टेबल की पहले कॉपी बनाओगे और उसको रीनेम करोगे, और जो पहले वाला टेबल होगा उसमें जो वैल्यूज तुमने डिलीट करनी है वो डिलीट कर दो, रोज जो है। जो नहीं चाहिए मुझे जो इसमें। नहीं चाहिए साइज को डिसेंडिंग ऑर्डर करके वो डिलीट कर दो, और जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर चेंज हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। जी तो जी। इसका हाल ये है कि आप इस पूरे डेटाबेस की कॉपी बना लो, क्योंकि उसके अंदर अगर आप एक नया टेबल कॉपी करोगे तो वो एक किस्म का बहुत बड़ा साइज हो जाएगा फिर। हम्म, ठीक है, तो आप डेटाबेस का बैकअप बना लो, और अगर जी। वो किसी वजह से ना चले तो फिर उसको रीनेम को वापस वापस लेके तो करोगे तो वो रिकनेक्ट हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया। तो आप, यस। स्टेप ये है कि आपने डेटाबेस की कॉपी बनानी है, उसको जो जी जी। ओरिजिनल डेटाबेस होगा उसको उसी नाम के साथ जो टेबल है उसको ओपन करके तो उसके अंदर से फिजिकली वो रिकॉर्ड जो है वो तुमने डिलीट करने हैं, जिनको हम्म, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके उस कॉलम की बेस के ऊपर आपने उनको हम्म, फिजिकली वहां से रिमूव कर देना है, और बाद में जाके टेबल पिवट टेबल को रिफ्रेश करना है पूरी फाइल जी। को। तो उससे यह है कि आपने मेक श्योर करना है कि टोटल नंबर जो है वो आपका सब जगह बराबर हो। 1.5 मिलियन है तो या 1.3 मिलियन रह जाएगा या 1.35 मिलियन होगा, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टेबल्स। हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। तो यस अब बिल्कुल। आपका जो फर्स्ट पेपर है हम्म, वो यहाँ पे कंप्लीट, उसके जो एनालिसिस है वो बन जाएंगे। अब आपने ये सारे एनालिसिस को कंप्लीट करना है। जी। अभी तो आप एक्सेल में रखोगे, तो एक्सेल आपकी दो तरह की होगी, एक होगी जिसके अंदर एक्टिव लिंक होगा। ठीक है, ठीक दूसरी है। शीट आपने लैदा बनानी है जहाँ जो हम इसी के अंदर कॉपी कर रहे हैं डेटा टेबल को, उसकी बजाय आप सेपरेट बना लो। ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि वो जी जी। लाइट टेबल हो जाएगा तो उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो वो फाइल ठीक है। छोटी हो जाएगी तो उसको इजीली हम शेयर भी कर सकते हैं, वरना ये वाली फाइल जो है वो काफ़ी हैवी हो जाएगी क्योंकि ये कनेक्ट होगी विद डाटाबेस के साथ। जी, तो बिल्कुल ठीक है। वो जो टेबल होगा वो आपने हर शीट के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग उसका जो इस तरीके से करना है एक्सेल के अंदर, कि जब हम उसको वर्ड के अंदर लेके जाने के लिए रेडी टू वर्ड होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन सारा जी काम जी। जो है टेबल जो है वो चार्ट जो है वो आपके एक्सेल के अंदर कंप्लीट होंगे। हम्म, ठीक ठीक हो है, गया। तो यस यहाँ से फिर हमने अब आपने जो वो यूनियन काउंसिल का टेबल बनाना है वो भी यहाँ पे फाइनल करना है। जी। फिर वहां से उसको सीएसवी को बना के तो अब आपने ज्वाइन करा के उसी लेआउट के अंदर आपने करना है। ठीक हो गया। अब आप ठीक हो जाओ गया। मैप के ऊपर, एक जो लास्ट चीज है मैप के ऊपर, डाटा तो हमें पता चल गया कि आपने वेरिएबल मैप क्या करना है। ये जो ऊपर जी। लोकेटर मैप है ना, इसको हमने निकालना है यहाँ से और इसकी जगह हमने कुछ और फिल करना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक ठीक हो है, गया। तो जी आप जी। ऑप्शन नहीं रखो, पहले वाले टेम्पलेट को सेफ रखो, लेकिन इस हम्म, वाले में सोचो कि इसमें क्या चीज ऐड करो कि इस मैप की वर्थ बढ़ जाएगी। हम्म, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी मैप, इसी का छोटा मैप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं उसमें, जी, प्रोविंशियल लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये जो स्टडी एरिया है इसमें यूनियन हम्म, काउंसिल का मैप है, तो इसमें सिर्फ हम रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के दिखा सकते हैं, और ठीक है। उसमें ठीक जो है। है वो तमाम जो कैटेगरीज हैं उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं पाई चार्ट की मदद से। हम्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देयर विल बी जी जी। डिफरेंट ऑप्शन। तो आप यूँ समझो कि अभी तक तो इसको इस लोकेटर मैप को रहने दो ठीक है। पाकिस्तान के, लेकिन जी। हमने इस स्पेस को कोई पॉजिटिव यूज करना है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही ठीक है, है। और जी। जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं अब उसको जो है वो आपने इसका जो सिंबल है वो ऐसा बनाना है जो विजिबल भी हो। हम्म, ठीक है, और उसके साथ थोड़े से सिंबल भी ऐसे आए कि नजर आए कि ये ट्रांसमिशन लाइन की ही बात कर रहे हैं हम। ये सब पोल्स का डाटा है, वो मैं ठीक है, डाउनलोड कर लूँगा। पोल हो जाए या कोई एक सिंबल ऐसा आ जाए कि इंटरवल से, और इसकी अगर आपके पास ट्रांसमिशन की थोड़ी सी फर्दर डिटेल आ जाए, कंटिन्यूटी हो जाए, तो वो अगर आप कर सकते हो तो वो देखो ये जो पिंक कलर है बाकी बैकग्राउंड कलर के साथ वो मैच हो रहा है। जी। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा प्ले करना है कि जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं इसको हम कैसे थोड़ी सी सप्रेस करें कि जो लाइन वर्क है ये प्रोमिनेंट हो जाए।
यस बिल्कुल सही। ठीक है। जी जी। और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि हमें इस एरिया के अंदर जो है वो इसका जो वाटर बॉडीज का मैप है उसको डिटेल में दिखाना है। हम्म, ठीक है, जो ठीक है। मेजर रिवर्स हैं वो सारे के सारे दिखाने, क्योंकि रिवर से आपकी एलिवेशन का पता चलता है, एटलीस्ट जी। वैलीज का पता चलता है कि ये लो साइड है, तो वहीं से डिवाइड हो जाता है कि ये दोनों साइडें इसकी हाई हम्म, राइज होंगी साइडों पे, जो है वो माउंटेन रीजन होगा। जी। ठीक है, तो इसलिए अब यस। आपको इसकी जब ये लेयर तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी कॉस्मेटिक्स को इम्प्रूव करेंगे कि जो रीडेबल है, कि जो लोकेशन होगी यूनियन काउंसिल की, जो एलिजिबल हम्म, है या नहीं है, उसको मजीद एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी हमें। जी बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो हमारे पास दो यस। चीज़ें हैं, या तो हम इसमें डैम को इंक्लूड करें तो वो थोड़ा सा वो शेड मिले हमें एलिवेशन का, लेकिन उसके साथ हम्म, हमें वाटर बॉडीज को चाहिए। हम्म, ठीक है, तो हमें ठीक है। एक लेयर तैयार करनी है जो मेजर रिवर्स को जो जी वो जी। है वो शो कर रही हो, और वो हमारी ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हाइड भी ना करे बहुत ज़्यादा, जो है जिस तरह जैसा अभी हमारे पास एक लेक है, तरबेला डैम है हम्म, इसमें। तो यस। लेकिन ये है कि ये इसको जिस तरह रिवर ऊपर जा रहा है तो इस लाइन को हम थोड़ा सा हाईलाइट करें किसी तरीके से, क्योंकि नॉर्मली रिवर की बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किसी हद तक बातों का सेम हो जाती है। ठीक है, तो हमें फिर ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को इस तरीके से करना है कि मजीद मिनिमाइज करना है कि ये डिस्ट्रिक्ट नज़र भी आए, लेकिन ये लाइनें बहुत प्रोमिनेंट भी ना हो। यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमें फिर हम्म, अगले स्टेज के ऊपर जब ये डाटा आ जाएगा तो हमें इसके तरीके से इसको करना है। तो ऊपर वाले जी। हिस्से को अगर हम कुछ भी ना यूज़ करें तो ये जो लेजेंड है ये ऊपर चला जाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये जो जगह है इसमें हम थोड़ा सा जो इसमें जो सिटीज़ हैं उनकी लोकेशन हमें डॉट में कुछ 4-5 सिटी दिखानी, इस्लामाबाद किधर है, पेशावर किधर है, अगर कहीं पेशावर नज़र आ सकता है, या मर्दान है, कोई जो मेजर जो सिटीज़ हैं ऊपर गिलगित वगैरह अगर कहीं नज़र आ, मुजफ्फराबाद आ जाएगा। जी ठीक है, तो इस तरीके से विद जी। इन द स्टडी एरिया दो चार मेन लोकेशन हमें देनी है टाउन की या सिटीज़ की, यस। और जी। जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर भी हमें इमीडिएट में मैप को चेंज किए बगैर जो जो एरियाज में आते हैं पॉइंट्स, उनको हमने दिखाना है कि मैप को रीड करना आसान हो। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। यस। तो ये आपका जो है वो एक मैप मेरा ख्याल काफ़ी होगा इन सारी चीज़ों के एक्सप्लेन करने के लिए। जी जी। बाकी आपके जो मैप होंगे वो जिसमें बिल्डिंग फुटप्रिंट नज़र आएगी, वो सैंपल के तौर पे हमने 2-3 यूनियन काउंसिल का आपने जो किया हुआ है उसको हम जी। उसको 2 यूनियन काउंसिल को हम देखेंगे, उसको फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि उसको हमने कैसे शो करना है। ठीक है ठीक जी। है, क्योंकि उसका थोड़ा सा जी अभी जी। हमें इसके रिजल्ट के बाद देखेंगे कि हमें कौन सी यूनियन काउंसिल जो है वो हमने मज़ीद डिस्कस करनी है। जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक सही। हो गया, तो अब आपने जी जी। मेरा ख्याल है कि अब आपका जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिफाइन हो गए हैं। हम्म, ठीक है, तो अब यस। प्लान ये है कि हम सारे रिजल्ट्स को एक दफ़ा कंप्लीट करेंगे ठीक है। टेबल की शक्ल में, जो भी आपकी इसमें आपने उसको रिफाइन करना है, फिल्टर लगाना है, जो भी मेथड करना है, करने के बाद ये आपको मैंने सारे प्रोसेस समझा दिया है। अब मुझे ये जो जी फाइनल टेबल्स हैं वो इस तरह चाहिए, लेकिन ये इसका बाकी तमाम प्रोसेस भी आपके पास सेफ रहे कि अगर हमें कहीं हम्म, पे भी कोई चेंज करनी हो तो वी कैन रिप्रोड्यूस टेबल्स इजीली, हम्म, वरना फिर हमें मैनुअल दोबारा काम ना करना पड़े। जी ठीक हो ठीक है। गया, और टेबल जो है वो एक्सेल के अंदर होंगे, चार्ट भी एक्सेल हम्म, के अंदर होगा, इन सारों का फाउंट साइज यस। और चार्ट के अंदर फाउंट साइज, फाउंट टाइप, ये सारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, और वही लोगे जो आप टेक्स्ट के अंदर आप उन्हें यूज कर रहे हो। जी बिल्कुल सही। ठीक है, अगर यस। टाइम्स न्यू रोमन है या कोई और हम्म, एरियल है या जो भी यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर भी आप कोशिश करोगे कि वो सारे का सारा वही लेके आओगे, क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि टेबल के अंदर फाउंट साइज और होता है, हम्म, चार्ट्स के अंदर कुछ और होता है, मैप के अंदर कुछ और होता है। जी वो तो अब पिछली बार हमारा आपने वही मेक इशू है। श्योर करना है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं, टेबल, चार्ट और हम्म, मैप, इसमें जी। जो भी टेक्स्ट यूज हो रहा है वो नॉर्मली वही हो जो एक एक आध जो जर्नल जिसको हमने टारगेट किया हुआ है उनकी हम्म, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो सही। गया। जी जी। हाँ, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर अगले सेशन में जो है वो हम इन सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करके तो हम्म, टॉकिंग पॉइंट्स बनाएंगे कि जब आप रिजल्ट्स को लिखोगे तो हाउ यू गोइंग जी। टू बी डिस्क्राइब दो रिजल्ट, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हाईलाइट होंगी। तो हम्म, जो राइटअप होगा रिजल्ट्स का, वो आपको पहला रिजल्ट टेबल देना है, उसको बताना है कि टेबल नंबर दिस, वो हम्म, आपको क्या ठीक है। इंफॉर्मेशन दे रहा है,
ओवरऑल जी इंफॉर्मेशन इन द स्टडी एरिया लेवल बाय द डिस्ट्रिक्ट और बाय द यूनियन काउंसिल जो भी आएगा उसके अंदर। फिर आपने उसके टेबल को रीड करने के लिए बताना है कि इसके अंदर कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन है, रोज में क्या है, और वैल्यूज जो है एक सेल की वैल्यूज को आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल जो है वो ये वैल्यूज को आपने कैसे रीड करना है। तो ठीक है। ये रिजल्ट्स के अंदर आएगा। तीसरे नंबर पे ऊपर आपने बताना है कि ये जो ओवरऑल जो पैटर्न है वो क्या है, कहाँ पे जी हाई वैल्यूज किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, किस में लो आ रही है, ओवरऑल कौन सी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो अगर पहला ओवरऑल टेबल की बात करते हो तो उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। जी ठीक है, तो ये जो चीज यस होगी वो आपकी रिजल्ट्स के अंदर आपने हर टेबल के साथ आपने ये अटैच करते जाना है, तो आपका रिजल्ट जी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यही ऑर्डर जो होगा फिर डिस्कशन के अंदर हम अब लेके आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? कोई यस सर। क्वेश्चन इस बारे में हमने, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ रहे हो कि मजीद डिस्कस करने वाली है जो क्लियर नहीं है, या कैसे नहीं कर, आप कैसे करना है वो आपको क्लियर नहीं है, तो वो मैं आपको अभी टाइम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, जो अभी तक जितनी डिस्कशन हुई वो सारी चीज़ें क्लियर है मुझे। अभी तो लाइक टेबल्स कंप्लीट करूँगा पहले। ठीक है, तो जी कल सर। फिर मुलाकात होगी दोबारा। जी जी सर, मैं कर कोशिश लोगे करूँगा मैं कल तक? टेबल्स और डाटा जो सारा ज्वाइन करने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह कर लूँगा कल कैसी लग रही है शेप इसकी अपनाओ? तक। सर काफ़ी बेहतर हो गया अब। क्या चीज़ जी बेहतर है इसमें? सर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइक अगर आप पूछें कि 750 से 999 तक कितने जो है तो हम लोग परसेंटेज से बता सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पता चल रहा है सारा कुछ। तो इसको तुम अपने थीसिस में जो तुमने चीज़ें रिजल्ट्स रिपोर्ट किए थे और अब ये जो पेपर के लिए हम इसको रिफाइन कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कितना का रिफाइनमेंट है इसमें? सर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाले रिजल्ट है उसमें तो हम लोग बस वही लगे थे कि इतने एलिजिबल है इतने एलिजिबल नहीं है, बट हम लोग वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि कितने परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट में वैल्यूज हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। वो एक हम्म चीज़ मिसिंग थी। बाकी वो हमारी एक अपनी क्रिएट की हुई थी कि स्मॉल मीडियम और बिग साइज हम्म घरों हम्म की। हम्म, वही हम्म, उसमें भी वही चीज़ें थी कि कितने एलिजिबल हैं कितने नहीं हैं। बाकी ठीक है, इसमें जिस तरह ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कैटेगरी वाइज वो नहीं सही। था इसमें। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड पेपर। ठीक जी है, इंशाल्लाह। क्योंकि ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक रिफाइन हो गया है, लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन को रिविजिट करना है तो अब आपको अंदाज़ा है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द रिजल्ट्स। जी मैं ठीक है, अब्दुल्ला का तो वेट कर आप, रहा हूँ, वो एक दफ़ा वो कंप्लीट कर ले फिर ठीक उसके है, बाद ही। तो आपका जो को ऑथर है जब वो उसको प्रूफ रीडिंग कर लें आपके इंट्रोडक्शन को, तो जी आपने इंश्योर करना है कि जो रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस तरह का मटेरियल आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कहीं उसको कनेक्ट किया हुआ है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो जी सेकंड राउंड होगा वो बेसिकली इंश्योर करेगा कि जो आप रिजल्ट्स लेके जा रहे हो अब उसके साथ आपने कनेक्शन को जो इंश्योर करना है। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। जी तो जी अब आपने रिजल्ट्स को भी ड्राफ्ट करना शुरू कर दो, रिजल्ट सेक्शन को। ठीक है। ठीक जी है, आपको अंदाज़ा हो गया कि ओवरऑल रिजल्ट्स आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, जी लेकिन हमारा फोकस क्या है? पर मरला पीवी वैल्यूज और एनुअल। हम्म, अभी हम जी बाई मंथली डिस्कस नहीं कर रहे इसके अंदर, यानी कि जी अभी इस डाटा के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर हम मंथली भी डिस्कस करना चाहें तो इसके अंदर मजीद हमारे पास आ सकता है। आप इसी रिजल्ट्स को मजीद रिफाइन कर सकते हो सीजनल में। जी ठीक है, आपने ईयरली टेबल बन गया ना, अब आपका टेबल एक बन सकता है जिसमें 2 सीजन बन जाएंगे। जी कैटेगरीज बनाने में तो मन। सीजन 1 और सीजन 2, तो 6 6 महीने के आप दो जी सीजन बना के तो उसको डिवाइड कर सकते हो कि भी गर्मियों के या फॉल, और उसमें जो समर का जो सीजन है प्लस माइनस जो उसके साथ आएगा 2 3 महीने, वो आप जी एक रेंज डिफाइन कर दो कि यहाँ पे डिमांड जो है वो हाई है, या हम्म, फिर अगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है फॉर हीटिंग जी पर्पसेस वो हम्म, विंटर में बढ़ जाता है। ठीक है, हम्म, लेकिन फिर उसमें जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, जो क्या कहते हैं विजिटिंग पॉपुलेशन जो है वो जो जी तो वो कम हो टूरिस्ट जाती कम है, हो जाती गेस्ट टूरिस्ट जो है वो कम हो जाते हैं, तो है। फिर उसकी डिमांड भी उस तरह कम हो जाती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये देखना है कि जो समर है इसमें आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है इन एरियाज़ के अंदर भी। जी ठीक है, या एटलीस्ट ठीक है। फैन आपको चाहिए होगा, फिर जी ठंडे पानी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको। तो इस तरीके जी से जो है वो चीज़ें डिमांड आपकी बढ़ जाती है, तो आप दो हिस्सों में डिवाइड करके रिजल्ट को मज़ीद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम समझते हैं जी कि इसके अंदर हमें वो एंगल इंट्रोड्यूस करवाना है सीजनल का,
तो अब आपको अंदाजा है कि आपको इसी टेम्पलेट के ऊपर ईयरली डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये वो मंथ्स का डाटा है, वो बस हमने वो ज्वाइन करना होगा, उसको 2 सम ग्रुप लेना बना होगा। देने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जी, जी, जी। ठीक हो गया? यस। तो इस तरीके से आपका जो है वो यही ईयरली इंफॉर्मेशन जो है वो 2 हुँ, सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो देखेंगे हम हमें जी, इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर अगर वो कर देंगे तो पेपर और बड़ा होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन जी। उसको फिर उतना हुँ, हैंडल करना और मुश्किल होता जाएगा। जी, वो एक लिमिट जो होगी टेबल्स वाली वो इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा हो बिल्कुल। जाएगी। हुँ, पर अब देयर आर सो मेनी डायमेंशंस वी कैन मूव फ्रॉम हियर, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक टू द पॉइंट एक पेपर आ रहा है जिसको हम अगर मजीद एक्सपैंड करना चाहेंगे एक दो लाइन में, एक दो एरियाज के अंदर, तो हमारे पास अब मजीद गुंजाइश है। जी, यस। ठीक हो गया? जी, जी, बिल्कुल सही। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह ताला इस पे हम मजीद करेंगे डिस्कशन। यस सर, इंशाल्लाह।